أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما نافعا۔ اگر ریویژن کریں پچھلی سبق کا تو پچھلے سبق کے تعلق سے ہم نے یہ جانا تھا کہ کوئی بھی زبان اپنے حروف سے شروع ہوتی ہے اور حروف کی سیکوینس یا آرڈر ترتیب اس طرح تھی کہ ہم نے پہلے بلاک میں حمزہ کو رکھا تھا کیونکہ وہ ڈکشنری کا بھی آرڈر ہے، اور الف اور حمزہ کا فرق جانا تھا کہ حمزہ عربی والوں کے ہاں لیٹر کنسیڈر کیا جاتا ہے، الف کو وہ لوگ حروف تہجی کا حصہ نہیں مانتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ حمزہ اور الف کی اگر وہ آئیں گے تو شکلیں کیا ہوں گی۔ حمزہ ہمیشہ لفظ کے شروع، بیچ اور آخر تینوں جگہ آ سکتا ہے، الف صرف بیچ اور آخر میں آئے گا۔ اس کے علاوہ پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جس طرح انگلش کے جو الفابیٹس ہیں وہ کانسوننٹس ہیں اور وائلز بھی ہیں، لیکن عربی میں جتنے بھی حروف ہیں وہ تمام کے تمام کانسوننٹ ہیں، یعنی جو ان کو جیسا ان کو لکھا گیا ہے، جو ان کی لیٹر ساؤنڈ ہے وہی ان کی اصل آواز بھی ہے۔ انگریزی میں اگر لکھتے ہیں ایم تو ساؤنڈ ہوتی ہے ماں، ایسا نہیں ہے عربی میں اگر میم لکھ رہے ہیں تو ماں ہی ساؤنڈ ہوگی۔ اس کے علاوہ پھر ہم نے کچھ حرکات دیکھیں جس میں آ ای او کی آواز آتی ہے، جیسے زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، اور جزم تشدید وغیرہ۔ پھر ہم نے یہ جانا کہ حروف مل کر لفظ بنتے ہیں، اور لفظ کو کلمہ بھی کہتے ہیں، اور کلمہ معنی دار لفظ کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں کوئی بھی مہمل یا جس لفظ کے کوئی معنی نہ ہو استعمال نہیں کیے گئے ہیں، اس لیے ہم لوگ بھی صرف میننگ فل ورڈس ہی یعنی کلمہ ہی پڑھنے والے ہیں۔ اور جس طرح انگلش کے پارٹس آف اسپیچ 8 ہیں، اسی طرح عربی کے پارٹس آف اسپیچ صرف 3 ہی ہیں، اور وہ ہیں اسم، فعل اور حرف۔ اسی کے تعلق سے پہلے ہم نے اسم کے بارے میں کچھ پڑھا تھا، یہ کہ اسم کی 3 علامتیں ہیں۔ اگر کسی لفظ کے شروع میں الف لام آئے، یا پھر کسی لفظ کے آخر میں دو زبر دو زیر دو پیش تنوین یعنی ڈبل حرکت آئے، یا پھر کسی لفظ کے آخر میں گولتا یا تائے مربوطہ آئے تو وہ بھی اسم کی بیسک علامتوں میں سے ہے۔ اور آپ سے کہا بھی گیا تھا، الحمدللہ بہت سے لوگوں نے اس کو بھیجا ہے اور کچھ لوگوں نے نہیں بھیجا۔ تمام سے درخواست ہے کہ پلیز اگر آپ بھی بھیجیں گے، جو لوگ واقعی عربی سیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ کلاس میں تو بہت سارے لوگ ہیں، ہوم ورک بہت کم لوگوں کی طرف سے آیا، تو ہمیں جاننا ہے کہ کہاں آپ کو بھیجنے میں پریشانی آئی وہ سبق، یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ آلریڈی بہت اچھے سے یہ بیسک عربی جانتے ہوں، چلیے اگر وہ ریزن ہے تو اوکے ہے، لیکن اگر آپ واقعی بگنر ہیں تو پلیز آئندہ سے ضرور بھیجیں تاکہ اس میں آپ کو ہی فائدہ ہوگا۔ اب جو آگے ہم سیکھنے والے ہیں وہ ہے مرکب۔ مرکب ایک ایسا لفظ ہے جو سننے میں بھی تھوڑا مشکل ہے، تلفظ میں بھی مشکل ہے، اور اس کی ڈیفینیشن بھی مشکل ہے۔ ویسے تو آسان ہے لیکن یہ یاد نہیں رہ پاتی، ایسا تجربہ کیا گیا ہے۔ تو ابھی ہم بتائیں گے اس کے بارے میں، اور پھر آپ لوگوں میں سے پوچھیں گے۔ یہ بات ہم پہلے اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ آپ اس کو خوب غور سے سنیں۔ یہاں لکھا ہے مرکب۔ مرکب کو انگلش میں آپ کمپاؤنڈ کہہ سکتی ہیں۔ ایک سے زیادہ لفظ مل کر، ایک سے زیادہ لفظ مور دین ون ورڈ اگر مل جائے تو پھر وہ مرکب ہے۔ جیسے ہم کہیں خوبصورت مسجد، تو خوبصورت ایک لفظ اور مسجد ایک لفظ، یا ہم یہ کہیں یہ مسجد، تو یہ ایک لفظ اور مسجد دوسرا لفظ، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مرکب ہے۔ یا ہم اس مرکب کے اندر جو ابھی ہم نے 2 مثالیں پیش کی، ایک سے زیادہ لفظ یعنی دو دو لفظ تھے، لیکن مرکب کے اندر 2 سے زیادہ 3 4 5 6 اور انگنت الفاظ ہو سکتے ہیں۔ الغرض مرکب کہتے ہیں جس کے اندر ایک سے زیادہ لفظ ہو۔
पहले ये जान लें, एक बार फिर से रिवीजन कर लें कि मुंह से जो भी लफ्ज मानादार निकलता है उसे कलिमा कहते हैं। कलिमा या लफ्ज की तीन किस्में हैं: इस्म, फ़िल, हर्फ। और ये हम पहले पढ़ चुके हैं। देयर आर ओनली थ्री पार्ट्स ऑफ स्पीच इन अरबिक। सिर्फ तीन ही पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। उसकी डेफिनेशन आप लोग को मालूम है कि इस्म वो लफ्ज है जिसके अंदर कोई ज़माना ना पाया जाए और उसके कुछ मायना हो। फेल जिससे किसी काम के होने या करने का मालूम हो और उसमें कोई ज़माना भी हो। हर्फ के कुछ माने तो हों, लेकिन ये इस्म या फेल से मिले बगैर इसके मायने समझ में ना आए या इसका इस्तेमाल करना मुमकिन ना हो। फिर हमने थ्री साइंस ऑफ इस्म पढ़ी थी और जिसको हम रिवीजन ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर उन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख लेते हैं। यहाँ एक इबारत लिखी है, बहुत नोन टेक्स्ट है, ये बहुत आम इबारत है। लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमान सॉरी अऊज़ु बिल्लाह, तअव्वुज़ है ये। तो यहाँ पर इसमें तीन हिस्सों में नीचे बांटा गया है। इसम में अल्लाह लिख दिया गया जो ब्लू कलर से है। आप ऊपर के टेक्स्ट अऊज़ु बिल्लाह को अगर देखें यहाँ, तो कलर वाइज इसको डिवाइड किया गया है और फिर ऐसे ही नीचे लिखा गया है। फिर फ़िल यानी काम अऊज़ु है और हर्फ बा है। यहाँ इस्म फ़िल हर्फ के हिसाब से लिखा गया और यहाँ पर अऊज़ु बिल्लाह सेंटेंस में कौन सी चीज़ पहले आनी है, कौन सी बाद में और कौन सी आखिर में, उस हिसाब से रखा गया। तो इसके हिसाब से अल्लाह एक इस्म है, अल्लाह एक नाम है और आप जानते हैं ये अल्लाह का नाम है, माबूद का नाम है। फिर आता है फ़िल जो अऊज़ु है, फिर है हर्फ जो बा है। तो बताना मकसद ये है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ने वाले हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच मुख्तलिफ तरीके से जुड़कर इबारत और जुमला बनाते हैं, जिससे हमें कोई बात समझ में आती है और कुरानी आयतों के या उसके टुकड़े भी इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर बने हैं। ये तो आपको मालूम है कि अगर यहाँ से देखना शुरू करें, कलिमा, कलिमा मानीदार लफ्ज़ को कहते हैं। इसके तीन हिस्से हैं: इस्म, फ़िल, हर्फ। और इस्म, फ़िल, हर्फ ये तीन हैं। इनमें से अगर कोई दो मिले, यानी सिर्फ दो लफ्ज़ मिलने से मुरक्कब बन जाता है। मुरक्कब में अलबत्ता दो से ज़्यादा अल्फाज भी हो सकते हैं, लेकिन मुरक्कब का एक मायने और है मीनिंगफुल कॉन्स्टेंट, यानी जिसके कुछ मायने हो। मिसाल के तौर पर हमने कहा खूबसूरत मस्जिद, तो यहाँ ये समझ में आ रहा है कि हम किसी मस्जिद के बारे में बता रहे हैं कि वो खूबसूरत है। लेकिन अगर हम ये कहें चिड़िया, गिलास, दो अलग अलग लफ्ज तो हमने बोले, लेकिन ये मुरक्कब नहीं है क्योंकि इसके कोई मायने नहीं है। या हम ये कहें कि ताजमहल के अंदर एक खूबसूरत मस्जिद है, तो आप इसको भी मुरक्कब कह सकती हैं, लेकिन इसके अंदर मोर देन टू वर्ड्स हैं और जो मुरक्कब की तारीफ है। तो मालूम ये हुआ कि मुरक्कब चाहे छोटा हो, दो लफ्ज से बना हो या दो से ज्यादा से बना हो, मुरक्कब के कुछ ना कुछ मायने होते हैं, पूरे या अधूरे। यहाँ कुछ मिसालें दी गई हैं। यहाँ इसको हम अगर आप कलिमा को देखें तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं: स्टूडेंट, मॉस्क, क्लेवर, ऑन, एट। ये अलग अलग तरह के सेट ऑफ वर्ड्स हैं और इनसे सिर्फ एक मायने समझ में आते हैं। स्टूडेंट मीन्स तालिब इल्म, मॉस्क माने मस्जिद, सिर्फ एक मायने दे रहे हैं, क्लेवर, चालाक। लेकिन जब आप अगले सेट ऑफ वर्ड्स की तरफ जाते हैं जहां पर लिखा है इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, अ क्लेवर स्टूडेंट, एक चालाक या ज़हीन तालिब इल्म, ऑन द टेबल, में इसके ऊपर दिस मॉस्क,
یہ مسجد. تو یہ ہم الفاظوں کو 3 طریقے سے دیکھ رہے ہیں. تیسرے کیٹیگری میں لکھا ہے دا نیو ماسک، ایک نئی مسجد یا نئی مسجد سوری. پھر لکھا ہے دا بک از آن دا ٹیبل، کتاب میز پر ہے. آئی ایٹ حامد's کیک، میں نے حامد کا کیک کھایا. تو پہلے سے صرف ایک ون ورڈ میننگ ہمیں معلوم چل رہا تھا. انکمپلیٹ سینٹینس سے ہمیں کچھ سینٹینس کا پارشل میننگ پتہ چل رہا تھا، ادھورا معنی پتہ چل رہا تھا، اور کمپلیٹ سینٹینس سے ہمیں پوری بات سمجھ میں آ رہی تھی. تو اس کو اس طرح ہم انگلش میں ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ پہلے کو ہم ورڈ کہہ رہے ہیں، دوسرے کو ہم فریز کہتے ہیں. یعنی ایک سے زیادہ لفظ تو ہیں، کچھ معنی بھی دے رہے ہیں، لیکن مکمل معنی نہیں سمجھ میں آتے. کچھ ایسی ہی مثال ہم نیچے بھی دیکھنے والے ہیں. سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ ہم ایک بار پھر سے یاد دہانی کرا دیں. ہم نے میپ دیکھا تھا کہ سب سے پہلے ہم میننگ فل ورڈز پڑھیں گے، پھر ہم میننگ فل ورڈز کو ہم 3 حصوں میں بانٹ رہے ہیں. اسم کے بارے میں پڑھیں گے پورا، کہ عربی میں صرف اگر اسم فعل اور حرف ہی استعمال ہوتا ہے تو وہ کس کس طرح ہوتا ہے. وہ آگے بہت سارے اسباق انشاءاللہ آئیں گے. پھر فعل کے بارے میں، اسی طرح حرف کے بارے میں، پھر مرکب کے بارے میں. اور مرکب کو 2 حصوں میں بانٹا گیا ہے، تام اور ناقص. تام اور ناقص. مرکب تام مینس کمپلیٹ سینٹینس، اور ناقص مینس انکمپلیٹ یا فریز، انگلش میں جسے ہم فریز کہتے ہیں. یہ اسی پر پوری عربی اسی پر بیسڈ ہے، اور یہی ساری چیزیں ہم اپنے اس کورس میں انشاءاللہ پڑھیں گے. یہاں لکھا ہے عربک سینٹنسز صرف 2 ہی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن آپ بات اگر انگلش کی کریں تو بہت طرح کے سینٹنسز ہوتے ہیں، جس میں 12 تو کل ٹینس ہی ہوتے ہیں. پھر ان کے بھی پارٹس ہوتے ہیں، پھر سمپل سینٹنسز ہوتے ہیں، ایکٹیو پیسو ہوتے ہیں، اور فنکشنل ہوتے ہیں. بہت سارے طرح کے سینٹنسز ہوتے ہیں. لیکن عربی میں صرف 2 ہی طرح کے سینٹنسز ہوتے ہیں، اور وہ ہیں آپ کے نمبر 1 انکمپلیٹ سینٹنس، مرکب ناقص. یہاں پہ لکھا ہے نون الف قاف صاد، ناقص مانے انکمپلیٹ. مرکب ناقص یعنی انکمپلیٹ سینٹنس، اور مرکب تام مینس کمپلیٹ سینٹنس. تو مرکب ناقص کو جب آپ دیکھیں گے تو اس مرکب ناقص کو انگلش میں فریز کہتے ہیں. آپ اس کو عربک فریزز مان سکتے ہیں. مرکب ناقص کو فریزز کا مطلب ہے کہ کچھ ایسی یونٹ، کچھ ایسی بناوٹ الفاظ کی جس سے کچھ معنی تو سمجھ میں آ رہے ہوں لیکن پورے نہ ہوں. اور یہ 5 طرح کے ہوتے ہیں. اب تھوڑا سا کنفیوژن آپ کے دماغ میں یہ آیا ہوگا کہ بہت سارے نمبر آپ نے سن لیے ابھی ہماری زبانی، اور آپ کو تھوڑی پریشانی ہو رہی ہوگی. تو ایک بار پھر سے یاد دہانی کرا دیں، اور آپ میں سے چاہیں گے کہ آپ میں سے کوئی بتائے. سب سے پہلے تو یہ کہ عربی کے سینٹنسز 2 طرح کے ہوتے ہیں. اس میں سے پہلا ہے مرکب ناقص یعنی انکمپلیٹ سینٹنسز، جیسے انگلش میں فریز کہتے ہیں، یعنی ادھورے جملے یا کچھ ٹکڑے. اور یہ جو انکمپلیٹ سینٹنسز ہوتے ہیں یہ 5 طرح کے ہوتے ہیں. آپ میں سے کوئی دہرا سکتا ہے یہ نمبر؟ اگر دہرا سکتے ہیں تو پلیز بتائیں، یا پھر ہم ہی پوچھتے ہیں. جی سسٹر رضیہ، کا مائک آن ہوا ہے، آپ بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ عربک فریزز جو ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. کوئی ان کو نہیں، ٹھیک کر سکتا ہو تو بتائیے. صبا شیخ سسٹر بتائیے. جی باجی، عربک سینٹینسز اونلی 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں، ایک مرکب ناقص اور ایک مرکب تام. مرکب ٹھیک ہے، آپ کا جواب ایک دم ٹھیک ہے. سسٹر صبا بتا رہی ہیں کہ عربک سینٹنس. مرکب ناقص کی 5 قسمیں ہیں.
जिसमें जो है मायने तो होते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं होते, पूरे कंप्लीट मायने नहीं समझ में आते, और मुरक्कब ताम में कंप्लीट मायने समझ में आते हैं। बिल्कुल ठीक। तो सिस्टर सबा ने हमें बताया कि अरबिक में सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं। ये याद रखिए, सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं, जिसमें से एक होता है इनकम्प्लीट और एक होता है कंप्लीट। इनकम्प्लीट को नाकिस कहते हैं और कंप्लीट को ताम कहते हैं। अगर नाकिस याद न रहे तो अधूरे जुमले और पूरे जुमले, बस दो ही तरह के होते हैं, या तो अधूरे जुमले होते हैं या पूरे जुमले होते हैं। जो नाकिस होते हैं वो अधूरे होते हैं, और अधूरे अधूरे जुमलों की 5 किस्में हैं, या मुरक्कब नाकिस की, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस की 5 किस्में हैं। ये बात उम्मीद है सबकी समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग को कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप लोग बीच में भी हैंड रेज करके सवाल कर सकते हैं। हमारे चुप रहने का या हमारे खामोश होने का बिल्कुल इंतजार न करें। जब भी आपको कोई बात समझ में ना आए फौरन आप पूछ लीजिए। ऐसा ना हो कि क्लास ऑफ होने के बाद आप कहें कि आज का सबक मेरे समझ में नहीं आया। रीजन कुछ भी हो, प्लीज आप जरूर पूछें। तो मालूम ये हुआ कि इनकम्प्लीट सेंटेंसेस 5 तरह के होते हैं, और इन सेंटेंसेस के अंदर दो या दो से ज्यादा लफ्ज होते हैं। जो अधूरे जुमले होते हैं, मुरक्कब नाकिस होते हैं, उसके अंदर या तो दो लफ्ज होंगे या दो से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन इससे पूरे मायने समझ में नहीं आते। ये ग्रामर का एक ऐसा टुकड़ा है कि इससे कुछ मायने तो समझ में आ रहे होते हैं लेकिन पूरे नहीं, और इसमें कम से कम दो लफ्ज और दो से ज्यादा लफ्ज भी हो सकते हैं। अब वो जो 5 किस्में हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। कोई पढ़कर बताएगा नंबर 1 पर कौन सा है? प्लीज अगर कोई पढ़ सके तो। जी बाजी। मुरक्कब ऐसे नहीं, हैंड रेस करके। सिस्टर कौसर आप पहला पढ़िए जी। तौसीफी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब अज़ाफ़ी, मुरक्कब जारी, मुरक्कब अत्फ़ी। अतफी, जी बिल्कुल ठीक। नंबर 1 पे है मुरक्कब तौसीफी, जिसे हम डिस्क्रिप्टिव फ्रेज कहते हैं। फिर है मुरक्कब इशारी, जिसे हम पॉइंटिंग फ्रेज कहते हैं। फिर है मुरक्कब इजाफी, जिसे हम पजेसिव फ्रेज कहते हैं। और मुरक्कब जारी, प्रीपोजिशनल फ्रेज। और मुरक्कब अत्फ़ी मीन्स कंजक्शनल फ्रेज। ये सब टुकड़े हैं मुरक्कब तौसीफी के, मुरक्कब इशारी, ये सब जो है ये सब टुकड़े हैं। इनसे पूरी बात तो नहीं समझ में आती लेकिन थोड़ी बात समझ में आती है। प्लीज सिस्टर अपना माइक ऑफ कर लें। जी। एक बार पीछे से दोहरा दें। सेंटेंसेस सिर्फ दो तरह के होते हैं, नाकिस माने अधूरे और ताम माने पूरे। नाकिस 5 तरह के होते हैं, और 5 तरह के अभी हमने नाम बताए। वो नाम आपको याद ना भी रहे तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हर एक को हम तफसील से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले लिखा है डिस्क्रिप्टिव फ्रेज, यानी मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी, सबसे पहले इसके टाइटल को देख लेते हैं। मुरक्कब का मतलब आप में से कोई बताएगा? हमने कहा था कि ये कैसा लफ्ज है, इसकी डेफिनेशन बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है लोगों के लिए। हम चाहते हैं और हैंड रेज हो, क्योंकि हमने चैलेंज किया था वहां पर। हम चाहते हैं और लोग भी जवाब दें। जी सिस्टर अक्सा, बताइए मुरक्कब का क्या मतलब है? More than one words joined together या फिर meaningful construct. विच हैव सम मीनिंग, ओके। मीनिंगफुल कंस्ट्रक्ट कहना काफी नहीं होगा, क्योंकि उसमें दोनों पॉसिबिलिटी है कि वो पार्शियल मीनिंग भी दे रहा है। मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट ऐसा साउंड करता है कि शायद विच हैव विच हैज इन कंप्लीट सेंस, मगर यह दोनों ही पॉसिबिलिटी हैं। सिस्टर अक्सा। Okay. अच्छा सिस्टर इशरत बताइए मुरक्कब का क्या मतलब है? एक से ज्यादा लफ्ज मिल जाएं तो उसको मुरक्कब कहते हैं। दो हो या दो से ज्यादा लफ्ज हो तो वो मुरक्कब होते हैं। जी सिस्टर इशरत ने बहुत अच्छे अंदाज में बताया, लेकिन एक बात यहाँ बताना जरूरी है कि उस उनके कुछ मायना भी हों, या पूरे हों या अधूरे हों। क्योंकि अगर एक से ज्यादा लफ्ज, जैसे हम कहें चिड़िया, किताब,
تو پھر یہ مرکب نہیں ہوگا، کیونکہ چڑیا کتاب دو لفظ مل کر کوئی میننگ نہیں دے رہے ہیں. اگر ہم یہ کہیں مثال کے طور پہ یہ کہیں کہ سرخ گلاب، تو اس کا مطلب تو یہ ایک میننگ فل ہے کہ گلاب جو ہے وہ ریڈ کلر کا ہے، کیونکہ سفید رنگ کا بھی گلاب ہوتا ہے. تو اس طرح یہ بھی ایڈ کر لیں کہ مرکب دو سے زیادہ لفظ، ایک سے زیادہ لفظ اگر مل جائیں اس طرح کہ اس کے کچھ معنی ہوں، پورے یا ادھورے. السلام جی علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سسٹر زکیہ. میم جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے کچھ معنی بھی ہوں، تو اس کو ایڈجیکٹیو کے اس میں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں، ایڈجیکٹ بالکل نہیں. جیسے شو کسی چیز کو شو کرتا ہے میننگ. نہیں، ایڈجیکٹو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ آپ ٹائٹل دیکھ رہی ہیں، ڈسکرپٹیو آپ کہہ سکتی ہیں اس کو. اور سم ویئر ایڈجیکٹو بھی ڈسکرپشن کرتا ہے، لیکن ایڈجیکٹو جو ہے وہ ون ورڈ بھی ہو سکتا ہے. اور یہاں پر آپ دیکھ رہی ہیں کہ مرکب کے لیے ایک سے زیادہ لفظ ہوں گے. جی تو پارشل میننگ آ رہے ہیں ایڈجیکٹو کے بھی، کیونکہ ڈسکرپشن ایڈجیکٹو بھی کہیں نہ کہیں ڈسکرائب ہی کر رہا ہوتا ہے. تو دیکھ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں. ٹائٹل یہاں پر ہے مرکب توصیفی. مرکب کا مطلب ہے ایک سے زیادہ لفظ جس کے کچھ معنی ہوں، اور توصیفی کا مطلب ہے جو صفت بھی بتائیں، جو ایڈجیکٹو بھی ہوں، جو کسی کی خوبی یا خامی، اچھائی یا برائی بھی بتائیں. جیسے یہاں پر لکھا ہے، یہاں عربی والے ٹیکسٹ کو دیکھیں گے آپ، یہاں لکھا ہے مسجد جمیل. مسجد جمیل، مسجد کا مطلب مسجد ہے. جمیل بھی آپ نے سنا ہوگا، لوگوں کا نام ہوتا ہے، لیکن جمیل سے مراد یہاں بیوٹیفل ہے، خوبصورت. مسجد جمیل، خوبصورت مسجد. آگے لکھا ہے مسجد قدیم جمیل. بڑا کر دیتے ہیں تھوڑا. اس میں لکھا ہے مسجد قدیم جمیل، پرانی خوبصورت. قدیم مانے پرانی، جمیل مانے خوبصورت، پرانی خوبصورت مسجد. تو یہ دو سینٹنسز ہیں جس میں ایک میں دو لفظ ہیں اور ایک میں دو سے زیادہ لفظ ہیں. مسجد جمیل، خوبصورت مسجد. ایک بات آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ عربی میں تو لکھا ہے مسجد پہلے، لیکن اردو کرتے وقت، ٹرانسلیشن کے وقت ہم پہلے جمیل کا ترجمہ کر رہے ہیں، خوبصورت مسجد. اور جب اس کی عربی بناتے ہیں تو مسجد کو پہلے رکھتے ہیں، مسجد جمیل. تو یہ آرڈر چینج ہوتا ہے، یہ خیال رکھیں کہ جب بھی آپ کسی ایک نام کی خوبی یا خامی بتائیں گے تو وہ نام پہلے رکھا جائے گا عربی میں. لیکن اردو میں کیا ہوتا ہے، پہلے ہم ایڈجیکٹو بتاتے ہیں یا خوبی یا خامی بتاتے ہیں، اور پھر بعد میں نام لکھتے ہیں. پھر یہاں ہے مسجد قدیم جمیل. یہاں پر بھی جب اردو پڑھ رہے ہیں تو پرانی خوبصورت مسجد، پرانی خوبصورت پہلے بول رہے ہیں اور مسجد بعد میں بول رہے ہیں. تو اس طرح کے الفاظ جس کے اندر ایک سے زیادہ لفظ ہوں، اور یہ دو طرح کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں، اس میں ایک میں دو سے زیادہ لفظ ہیں، اور یہ صفت بتا رہے ہیں نام کی. تو یہ تو ایڈجیکٹو ہو سکتا ہے جمیل قدیم اور جمیل دونوں سینٹنسز میں، لیکن پہلے والا جو ہے وہ ناؤن ہے، ناؤن پلس ایڈجیکٹو. اب یہاں پر ایک آپ لوگوں سے ایک سوال ہمیں یہ کرنا ہے، جو لوگ بیسک عربک جانتے ہیں ان کے لیے سوال ہے، کوئی ہمیں بتائے، کرسر کے ساتھ دیکھیے گا جو بیچ والا ہے، بیچ والا جو سینٹنس ہے اس کو دیکھ کر بتانا ہے آپ کو. المسجد الکبیر، یہاں لکھا ہے المسجد الکبیر. کوئی بتائے گا اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ میں سے کسی کو اس کا ٹرانسلیشن آ رہا ہو تو پلیز بتائیے. المسجد الکبیر
थोड़ी बहुत तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो अरबी बेसिक जानते होंगे। मैम मस्जिद बड़ी है। बड़ी मस्जिद। बड़ी मस्जिद। देखिए 2-4 लोगों ने जवाब दिया है, सब तमाम बड़ी से मस्जिद दरख्वास्त जी। है इस तरह जवाब न दें। जो लोग हैंड रेज करते हैं हम उनकी कदर करते हैं, प्लीज इस तरह जवाब न दें। सिस्टर नाज़नीन बताएंगी कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब होगा कि वालेकुम अस्सलाम। ये मस्जिद बड़ी है। आपने कहा ये मस्जिद बड़ी है। सिस्टर फरहा परवीन आप बताइए। सिस्टर फरहा परवीन माइक ऑन कीजिए। ये बड़ी मस्जिद है। ये बड़ी मस्जिद है, ये मस्जिद बड़ी है, ये बड़ी मस्जिद है। सिस्टर नीलोफर आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम मैम, ये इसमें तो अल लगा हुआ है, तो ये तो दोनों इसम हो गए ना। जी दोनों इसमें है। तो इस तरह हम दोनों में अल लगा सकते हैं, मतलब मुझे ये पूछना था ना कि जवाब देना। अच्छा चलिए ये आपके मैंने सवाल का जवाब हम बाद में देंगे। जी 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 अभी बाद में देते हैं। सिस्टर जी। वैसे तज़ीन इसका फातिमा। जवाब तो ये सिस्टर हुआ कि मस्जिद बड़ी मस्जिद। सिस्टर तज़ीन फातिमा आपका क्या जवाब है। मैम बड़ी मस्जिद। बड़ी मस्जिद। तो यार अच्छा सिस्टर नीलोफर ये बताइए मस्जिदुन कबीरुन का ट्रांसलेशन क्या होगा फिर। सिस्टर नीलोफर माइक ऑन कीजिए मस्जिद और बताइए मस्जिदुन कबीरुन। मस्जिदुन कबीरुन, इसका भी होगा बड़ी मस्जिद, लेकिन ये भी इसमें है, दो पेश लगे हुए हैं इसमें। ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों का मतलब सेम हो, एक में 2 पेश हैं। मैम हम बताएं। नहीं प्लीज ये रुक जाइए। देखिए प्लीज जिनका नाम लिया जाए सिर्फ वही बताएंगे, बाकी कोई नहीं बोलेगा जिससे बात करें, क्योंकि डिस्टरबेंस होता है। ठीक है जी मैम, अल तो अल उसमें लगाते हैं ना, जिसको किसी को खास करने के लिए, कोई पर्टिकुलर मस्जिद के लिए। ये अभी तो सवाल मस्जिदुन कबीरुन के बारे में है, इसका क्या मतलब होगा। मस्जिद बड़ी है। मस्जिद बड़ी है। चलिए अब हमें सिस्टर तस्नीम अगर बताना चाहें मस्जिदुन, सवाल बदल गया है अब हमारा, सिर्फ वही लोग हैंड रेज रखें। मस्जिदुन कबीरुन और अल मस्जिदु कबीरुन, कबीरू में क्या फर्क है। सिर्फ वही लोग हैंड रेज रखें जिनको ये जवाब आ रहा है। तो सिस्टर तज़ीन फातिमा अगर आप जवाब दे सकें। मैम मस्जिद जो कबीरुन है मैम ये नकीरा है, जो सेकंड वाला है वो मारिफा है। तर्जुमा करना है, ये तो सबको पता है मारिफा नगरा है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। हम लोग जब वर्ड टू वर्ड कुरान ट्रांसलेशन पढ़ रहे होते हैं तो बहुत बेसिक ट्रांसलेशन है, उस वक्त तो हम लोग रट लेते हैं, बाद में हम एक सिंगल आयत का भी तर्जमा नहीं कर पाते, जबकि ये बहुत इजी ट्रांसलेशन है। मैम मस्जिद कबीरुन मस्जिद बड़ी है, अल मस्जिद कबीर बड़ी मस्जिद। तो आपने आपके बहुत मेजर मिस्टेक हो गई है, लेकिन आपने जवाब दिया, कोशिश की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैम मैं किस अब समझ में नहीं आ रहा किससे पूछे। सिस्टर जकिया परवीन आप बताइए क्या डिफरेंस है मस्जिद कबीरुन और अल मस्जिद कबीरुन। सिस्टर जकिया। मैं मस्जिदुन कबीरुन बड़ी बड़ी मस्जिद बड़ी, और अल मस्जिदुन कबीरुन में अल आया है तो ये खास है किसी पर्टिकुलर ये सब नहीं मस्जिद बताना का है, है। प्लीज समझ लें, ये सब नहीं बताना है, सिर्फ आपको ट्रांसलेशन करना है, ये हमें सबको पता है। सिस्टर नीलोफर भी बता चुकी हैं। ये मस्जिद बड़ी है। ठीक है अगर अल मस्जिदुन कबीर। ठीक है हम बताएं। मैम मैं बता सकती हूँ। मैम मैं बताऊँ। सिस्टर नाज़नीन। नाज़नीन आपने तो जवाब दे दिया है, अभी और लोग को भी मौका देते हैं। प्लीज आप लोग आप ऐसे मत कीजिए, जिनका हम नाम लें उम्मीद करते हैं कोई तो सिस्टर ऐसी होंगी जिनको आता होगा आंसर। सिस्टर फरहा आप बताइए। सिस्टर फरहा परवीन। यस मैम। मस्जिदुन कबीरुन बड़ी मस्जिद, अल मस्जिदो अल कबीरो ये बड़ी मस्जिद है। देखिए सभी लोग यही जवाब दे रहे हैं, जब एक बार जवाब गलत हो गया तो जवाब को रिपीट मत कीजिए। बड़ी मस्जिद, ये मस्जिद बड़ी है, ये जवाब गलत है दोनों ही। अगर आपका जवाब इससे मैच करता है तो बाजी हम प्लीज जवाब को रिपीट मत कीजिए। आपके पास अगर ठीक आंसर है, कंफर्म है, आप आइडिया से नहीं देना है। बाजी हमको मौका मैम दीजिए। हम बताएं। सिस्टर रफत बताएंगी। कौन कह रहे हैं हम बता, हमें अंदाजा ही नहीं हो रहा है।
हम कह रहे हैं ना खाली। चलिए सिस्टर हिना आप बताइए, फिर सिस्टर रफत मैम बताएंगी। पहले मस्जिदुन कबीरुन बड़ी मस्जिद और मस्जिदुन अल मस्जिदुन अल कबीरुन, मैम यहाँ दोनों इसम है, तो कबीर किसी का नाम है, तो ये कबीर की मस्जिद। चलिए बहुत अच्छा अनोखा तर्जुमा किया है, लेकिन इत्तेफाक से ये तर्जुमा भी ना ऊपर वाला ठीक है ना नीचे वाला ठीक है। सिस्टर रफत अच्छा आप बताइए। जी वो जो है अल मस्जिदो अल कबीरो, तो मस्जिद बहुत बड़ी है, अल कबीर का मतलब बहुत बड़ी। यहाँ मस्जिदुन कबीरुन तो मस्जिद बड़ी है। बाजी हम बताना। नहीं रुकिए एक मिनट, अभी पूछते हैं। देखिए सिस्टर रफत का भी जवाब अपने आप में बहुत ही अनोखा था, लेकिन जवाब दोनों ही गलत हैं। सिस्टर सबा बताना चाह रही हैं। सिस्टर सबा आप बताइए। बाजी हम ये ग्रामर तो नहीं जानते, लेकिन हम तर्जुमा करते तफसीर नहीं की नहीं क्लास नहीं, अगर नहीं जानती हैं तो आइडिया मत लगाइए, क्योंकि आपसे पहले बाजी 15 एक जवाब गलत मौका हो दीजिए चुके हैं। बाजी। सिस्टर सबा ट्राई टू नहीं नहीं लिसन। गलत मस्जिदुन अब में बाजी एक मौका दीजिए ना। आप ये मत कहिए कि हमें ग्रामर नहीं पता है, फिर भी हम आपसे ट्रांसलेशन नहीं कराएंगे। ये ग्रामर ग्रामेटिकली की क्लास है। ग्रामेटिक लिसन प्लीज लिसन, ये ग्रामर की क्लास है। अभी इससे पहले 15 जवाब गलत हो चुके हैं, अभी तक सही जवाब नहीं आया है, तो हम आइडिया पर तो नहीं जाएंगे। लेकिन हैंड रेज लोगों ने किए हैं, हम उस इसलिए जवाब पूछ रहे हैं। अगर हैंड रेज नहीं होता तो हम जवाब दे देते। तो सिस्टर चलिए बोल लीजिए सिस्टर सबा। बाजी मस्जिदुन कबीरुन का मतलब है ये एक मस्जिद बड़ी है। गलत है जवाब, ठीक है। और अल मस्जिदु कबीरुन का क्या मतलब, अल कबीरू का क्या मतलब है? बड़ी मस्जिद। ठीक है, दोनों ही जवाब आपके गलत हैं, ठीक है, मतलब पार्सल गलत है। डॉक्टर सैयदा से पूछना चाहते हैं। डॉक्टर सैयदा बताइए क्या जवाब होगा। मस्जिदुन कबीरुन बड़ी मस्जिद, अल मस्जिदु अल कबीरु एक बड़ी मस्जिद। चलिए आपका जवाब ना उल्टा हो गया है। मस्जिदुन कबीरुन का मतलब कोई बड़ी मस्जिद या एक बड़ी मस्जिद। अल मस्जिदु कबीरुन बड़ी मस्जिद। जब आप इबारत में तर्जमा करेंगी तो इस तरह करेंगी। जो लोग अरबी से वाकफियत नहीं रखते हैं, अगर उनका जवाब गलत है, उन्होंने कोशिश करके जवाब दिया है, तो बहुत अच्छे हैं वो लोग जो जवाब देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। गलत होने का मतलब पतन भी ये नहीं है कि आपने कोई गलती की है, आप बहुत अच्छे हैं कि आप पार्ट ले रहे हैं। हम उन तमाम लोगों को जिन्होंने हैंड रेस किया और कोशिश की जवाब देने के लिए बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं, और बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह आपको इल्म और अमल की बेहतरीन तौफीक अता फरमाए। अलगरज मस्जिदुन कबीरुन का मतलब है एक मस्जिद या कोई मस्जिद। अब आप पूछिए ये एक या कोई का तर्जमा कहाँ से आया। जब भी किसी लफ्ज के आखिर में दो जबर दो जेर दो पेश आए तो मतलब होता है नकीरा, मींस कॉमन नाउन। और कोई मस्जिद ये एक कॉमन मस्जिद है। कोई बड़ी मस्जिद या एक बड़ी मस्जिद, अगर हम कहें एक बड़ी मस्जिद वहाँ होनी चाहिए तो हम कॉमन बोल रहे हैं, ठीक है। और हम कहें कि बड़ी मस्जिद तो फौरन बड़ी मस्जिद कहते ही आपके एरिया की या आपके जो कॉन्टेक्स्ट है आपका, वो उससे पता चलता है। यहाँ पर ख़ास बड़ी मस्जिद लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये मारिफा है, ख़ास नाम है, इंडेफिनिट नाम है ये, सॉरी डेफिनेट नाम है, लेकिन फिर भी यहाँ ख़ास लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्ट ही आपको बता रहा है कि आप किसी ख़ास के बारे में बात कर रही हैं। तर्जमा करते वक्त जब भी आप उर्दू से अरबी अरबी से उर्दू करेंगी तो इसमें कोई या एक का तर्जमा करेंगी। चलिए अब नीचे लिखा है अल मस्जिदु कबीरुन, इसका तर्जमा बताएंगी बताएगा कोई? अल मस्जिद कबीरुन जी मस्जिद बड़ी है। मस्जिद बड़ी है। तो बस यही मकसद था कि अगर तीन तरह से लिखा है कोई लफ्ज, मस्जिदुन कबीरुन, अल मस्जिदु कबीरुन कबीरु सॉरी, और अल मस्जिदु कबीरु, ये तीसरा वाला जो है इसमें फर्क ये है कि पहले पर तो अलिफ लाम है, अल मस्जिदु पर तो अलिफ लाम है, लेकिन कबीरु पर नहीं है। जबकि ऊपर वाली इबारत में क्या था, पहले पर भी अलिफ लाम शुरू में था और आखिर में भी। यहाँ नीचे सिर्फ शुरू में अलिफ लाम है। अगर इस तरह की बनावट आपको दिखे कहीं कि शुरू में अलिफ लाम है और बाद में आखिर में दो पेश हैं, अलिफ लाम नहीं है, तो आप है का तर्जमा कर सकती हैं। मींस ये कंप्लीट सेंटेंस है हूँ जब आता है तो वो मुकम्मल जुमला होता है, कंप्लीट सेंटेंस होता है। मस्जिद बड़ी है, ये एक स्टेटमेंट है, किसी मस्जिद के बारे में इंफॉर्मेशन है कि मस्जिद बड़ी है।
मान लीजिए हम उसी मस्जिद के उसी मस्जिद में खड़े होकर कह रहे हो ये मस्जिद बड़ी है, लेकिन अल मस्जिदु कबीरुन बड़ी मस्जिद, ये भी दो ही लफ्ज हैं, लेकिन ये फ्रेज है, ये नाकिस जुमला है। नीचे वाला इनकम्प्लीट कंप्लीट था, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। मस्जिदुन कबीरुन ये भी इनकम्प्लीट सेंटेंस है। अब फर्क ये आप कैसे याद रखेंगे, 3 तरह के जुमले आपको बता दिए गए, तो याद रखिए वो ऐसे दो लफ्ज जिसमें पहला और दूसरा बिल्कुल एक तर्ज पर लिखे गए हों, जैसे मस्जिदुन में भी दो पेश है, कबीरुन में भी दो पेश है, एक ही तर्ज पर लिखे गए, इसे हम कहते हैं मुरक्कबे तौसीफी, जिसमें पहला दूसरे के बिल्कुल एक जैसा हो। जैसे अल मस्जिदु अल कबीर, इस पे भी अलिफ लाम था, इस पे भी अलिफ लाम, अल मस्जिदु के दाल पर एक ही पेश है यहाँ पर, और अल कबीरू के आखिर में भी एक ही पेश है। अगर पहला और दूसरा लफ्ज आपको सेम लगे तो आप समझ जाइए कि ये मुरक्कबे तौसीफी है। मतलब ये है कि पहले वाले की हम खूबी या खामी बता रहे हैं। अल मस्जिदु मस्जिद, कबीरुन बड़ी है, मस्जिद बड़ी है, सॉरी बड़ी मस्जिद, जब तर्जमा करेंगे तो उल्टा करेंगे, बड़ी मस्जिद, मस्जिदुन कबीरुन कोई बड़ी मस्जिद या एक बड़ी मस्जिद। अब फिर से समझ लीजिए कोई और एक का तर्जमा कहाँ से आया। अरबी में है कि कोई इंग्लिश नहीं होती, अरबी में है कि कोई अरबी नहीं होती। इंग्लिश में तो इज हम लगाते हैं, उर्दू में भी है लगाते हैं, लेकिन अरबी में है के लिए कोई भी लफ्ज मौजूद नहीं होता, सिर्फ इबारत के एतबार से हम है का तर्जमा करते हैं। इसी तरह कोई और एक की भी कोई अरबी नहीं होती, सिर्फ डबल हरकत से हम या तो कोई तर्जमा करते हैं या एक करते हैं या कुछ करते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। सेंटेंस में अगर कुछ ठीक बैठे तो कुछ लगाते हैं, जैसे अगर होता कुछ पानी या थोड़ा पानी, कुछ थोड़ा एक, इस तरह का हम एक तर्जमा खुद ही से लगा लेते हैं जब किसी लफ्ज के आखिर में दो पेश, दो जबर, दो जेर आता हो। तो जान लीजिए कि हम अभी मुरक्कबे तौसीफी यानी मुरक्कबे नाकिस के अधूरे जुमलों का पहला हिस्सा पढ़ रहे हैं, जो है मुरक्कबे तौसीफी। और मुरक्कबे तौसीफी का मतलब है ऐसा मुरक्कब जिसमें ऐसे दो लफ्ज हों कि पहले नाम की खूबी या खामी बताई जा रही हो। पहले को हम मौसूफ और दूसरे को सिफत कहते हैं। दूसरा है मुरक्कबे इशारी। इससे पहले हमने पढ़ा मुरक्कबे तौसीफी यानी डिस्क्रिप्टिव फ्रेज। अब हम पढ़ रहे हैं मुरक्कबे इशारी। मुरक्कबे इशारी क्या है? पॉइंटिंग फ्रेज। मुरक्कब का मतलब आपको मालूम है, एक से ज्यादा लफ्ज हों और उसके कुछ मायने भी हों, पूरे या अधूरे। इशारी का मतलब क्या है? जिस 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 लफ्ज में कोई इशारा का लफ्ज इस्तेमाल किया गया हो, जैसे उर्दू में होता है ये, वो, ये सब, वो सब। तो उमूमन ये और वो जो है ये लफ्ज इशारा या अल्फाज इशारा का कहलाते हैं। इंग्लिश में दिस और दैट होते हैं पॉइंटिंग वर्ड्स। जैसे यहाँ पर लिखा है दैट बॉय, जालिकल वलदु दैट बॉय। जालिका माने दैट और अल वलदु माने लड़का, वो लड़का। तो जालिका इसमें इशारा है और अल वलदु एक नाम है जिसकी तरफ इशारा हो रहा है। मुरक्कबे इशारी ऐसे मुरक्कब को कहते हैं जिसमें दो लफ्ज हो और उसमें कोई पॉइंटिंग वर्ड हो। पॉइंटिंग वर्ड अरबी के जालिका और हाजा हैं, जैसे इंग्लिश के दिस और दैट है। अभी तो सिर्फ हम इसका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं सारे, फिर इसकी तफसील पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मोर देन जस्ट 2 वर्ड्स। जैसे यहाँ पर लिखा है, इसको आप देखिए, यहाँ लिखा है जालिका मस्जिदुन। ये दो इबारत है, एक में लिखा है जालिका मस्जिदुन और एक में लिखा है जालिका अल मस्जिदु। बहुत गौर से देखिएगा, बहुत स्लाइट डिफरेंस है। जी सिस्टर शिवा पूछिए, क्या सवाल है? वो धोखे से हो गया था। अच्छा, कोई बात नहीं है। जालिका मस्जिदुन में मतलब हो रहा है जालिका माने वो और मस्जिदुन माने मस्जिद, वो मस्जिद है।
تو यहाँ पर हम इसको कंप्लीट सेंटेंस बना रहे हैं, वो मस्जिद है, दैट इज अ मॉस्क। लेकिन जालिका अल मस्जिदु, जालिका के बाद जब अलिफ लाम आया तो हम इसको फ्रेज बना रहे हैं, पार्ट ऑफ द सेंटेंस बना रहे हैं, पार्शियल सेंटेंस हो रहा है, ये पूरा मुकम्मल जुमला नहीं हो रहा, अधूरा हो रहा है, नाकिस हो रहा है। क्यों? जालिका भी एक खास नाम है और अल मस्जिदु भी एक खास नाम है, तो इसका मतलब हो रहा है दैट मॉस्क, वो मस्जिद। याद रखिए सिर्फ अलिफ लाम के एडिशन और सब्ट्रैक्शन से एक जुमला बन गया कंप्लीट सेंटेंस और एक बन गया इनकम्प्लीट। जालिका मस्जिदुन ये कंप्लीट सेंटेंस है और जालिकल मस्जिदु ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। किसी के जहन में कोई सवाल आ रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, परेशान बिल्कुल ना हो। पहले हम ऊपर के दो रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा सेंटेंस दो तरह के होते हैं, उसमें से एक होता है मुरक्कब नाक़िस, अधूरे सेंटेंस। मुरक्कब नाक़िस की 5 किस्में हैं, जिसमें से पहली है मुरक्कब तौसीफ़ी। मुरक्कब तौसीफ़ी के 2 हिस्से होते हैं। पहले को हम पहला कोई नाम होता है, दूसरा उसकी कोई खूबी या खामी होती है। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल एक जैसे होते हैं। पहले पर 2 ज़बर होंगे तो दूसरे पे भी 2 ज़बर, 2 ज़ेर होंगे तो इधर भी 2 ज़ेर, और इसी तरह अगर पहले पे अलिफ लाम है तो दूसरे पे भी अलिफ लाम। फिर हमने पढ़ा मुरक्कब इशारी। मुरक्कब इशारी के भी 2 हिस्से होते हैं। पहले पॉइंटिंग वर्ड्स लगाते हैं, हाजा जालिका, जिस तरह इंग्लिश में दिस और दैट लगाते हैं, और दूसरा वाला लफ्ज जो है वो भी खास नाम होना चाहिए, यानी अलिफ लाम के साथ आना चाहिए। अलिफ लाम के साथ आएगा तब तो वो मुरक्कबे इशारी कहलाएगा। जी सिस्टर जकिया परवीन, माइक ऑन कीजिए, क्या सवाल है आपका? मैम जैसे आपने बोला दिस इज अ मॉस्क, तो अ का जो साउंड है वो 2 पेश से मतलब वहां पर शो कर रहा है ना ये? जी बिल्कुल, 2 पेश फॉर दो सिंगुलर। जी 2 एक्चुअली पेश की वजह से जैसे आपने बोला कि जिसके ऊपर लास्ट में 2 पेश होंगे, तो कुछ एक या मतलब बिल्कुल 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 आपका बिल्कुल कहना ठीक है कि से जो इसमें दिस इज आ का मतलब यहाँ मस्जिदुन के दाल पर जो 2 पेश है उसका मतलब यही है। मस्जिदुन मीन्स एक मस्जिद। जी, क्योंकि इसका तो कोई मफहूम ही नहीं है, मतलब है हाँ इसका तो कोई वो अरबी ही नहीं कोई है अरबी वैसे। नहीं होती इसकी, है कि वो हमें खुद ही बता अपने आइडिया से, क्योंकि ट्रांसलेट हम कर रहे हैं तो जुमले के हिसाब से हम है हैं हूँ लगा लेते हैं। ठीक है, और कोई सवाल है? तो फिर हम मैम जी अल जो लगा हुआ है मस्जिद जी ऊपर, मैम अल जो लगा हुआ है मस्जिद ऊपर, तो ये तो इंडिकेट कर रहा है कि ये मार्फा है, लेकिन क्या कोई मीनिंग भी देता है अल? नहीं, जैसे मारिफा तनवीन का का मीनिंग एक बहुत मीनिंग। अच्छा सवाल है, हम आपको बता दें, क्योंकि जब हमने बचपन में पढ़ा था, जो आप सवाल कर रहे हैं ना, उसी तरह वो सवाल हमारे जहन में भी था। जब हम लोग को सबक पढ़ाया जाता था तो इस तरह पढ़ाया जाता था, मस्जिदुन कोई मस्जिद, अल मस्जिदु कोई खास मस्जिद, इस तरह हम लोग को पढ़ाया जाता था। किताबुन कोई किताब और अल किताबु कोई खास किताब। लेकिन इसका तर्जुमा इस तरह होता है कि जब आप जालिका कह रहे हैं, जालिका का मतलब है दैट, और दैट और जालिका एक पॉइंटिंग वर्ड्स है, यानी किसी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। जब आप किसी की तरफ इशारा कर देते हैं अपने लफ्जों में, हाथ से या कैसे भी, इशारा करने का मतलब है वो चीज खुद ब खुद खास हो गई। मिसाल के तौर पर एक जगह बहुत सारी ड्रेसेस रखी हैं, आपने एक ड्रेस की तरफ इशारा रखकर या एक को हाथ में पकड़कर कहा ये मेरी है, तो वो खुद ही बाकियों से वो खुद अलग हो गई। तो इसलिए यहाँ पर खास का तर्जमा करने की जरूरत नहीं है। जालिका ये बता रहा है कि ये मस्जिद खास है, जालिका के लगते ही पता चल गया कि वो खास मस्जिद है, वो मस्जिद। सिस्टर नाज़नीन, यस बात मैम, क्लियर हो एक गई? सवाल और है मैम, ये मैं जजाकल्ला मैम, एक सवाल और है मैम कि बिल्कुल आपने बोला कि अल लगने से नाकिस, नाकिस है वो मुरक्कब है ना, तो जी इसमें है नहीं लगाएंगे, बस यही फर्क है ना, तनवीन में है लगाएंगे बस। जी, है नहीं लगाएंगे, जालिकल मस्जिदु वो मस्जिद। और अगर इस तरह होगा जालिका मस्जिदुन, तो वहां पर आप है यूज करेंगे, वो मस्जिद है। वो क्यों यूज करेंगे वो बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ इनकम्प्लीट सेंटेंस को पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इनकम्प्लीट सेंटेंस की पहचान बता रहे हैं कि अगर पॉइंटिंग वर्ड्स हैं शुरू में तो फिर आप नेक्स्ट जो भी लाएंगी तो वो खास नाम ही लाएंगी। और खास नाम
कैसे होता है, किसी लफ्ज के शुरू में अलिफ लाम लगा दें तो वो खास नाम बन जाता है। अगर किसी लफ्ज के आखिर में दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश हो तो वो आम नाम होता है, वो कॉमन नाउन होता है, या इनडेफिनेट नाउन होता है। और जब शुरू में अलिफ लाम लगा हो तो वो मारिफा होता है, खास नाम होता है, डेफिनेट नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है। तो ये पहचान है। जालिका के साथ पॉइंटिंग वर्ड्स के साथ हमेशा आप खास नाम ही लगाएंगी, तब वो मुरक्कबे नाकिस बनेगा। और इस मुरक्कबे नाकिस को कहते हैं मुरक्कबे इशारी, मुरक्कबे इशारी। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए इसमें, जब इसका तर्जमा करते हैं तो कैसे करते हैं, सीधा ही करेंगे, जालिका मानी वो, और फिर मस्जिद, वो मस्जिद। लेकिन जब इससे पहला वाला हम मुरक्कबे तौसीफी का तर्जमा कर रहे थे तो वहां पर हम तरतीब को, ऑर्डर को चेंज कर रहे थे, बाद वाले का तर्जमा पहले और पहले वाले का बाद में। बड़ी मस्जिद, मस्जिद बड़ी इस तरह नहीं बोलते हैं हम लोग, बड़ी मस्जिद ऐसे बोलते हैं, लेकिन अरबी में मस्जिद का लफ्ज पहले और बड़ी बाद में, कबीरुन बाद में। तो बस ये बात याद रखनी है, मुरक्कबे तौसीफी और मुरक्कबे इशारी में फर्क ये है कि दोनों का तर्जमा करते वक्त तरतीब बदलते हैं। सिस्टर आतिया, आपका कोई सवाल है? तरतीब बदलते हैं, उर्दू की पहले और अरबी में बाद में लिखते हैं मुरक्कबे तौसीफी में, और मुरक्कबे इशारी में तरतीब नहीं बदलते हैं। दोनों में जो सिमिलर चीजें हैं वो ये हैं कि दोनों में दो दो हिस्से होते हैं, इसीलिए दोनों को मुरक्कब कहते हैं। लेकिन मुरक्कबे तौसीफी में सिफत लगाते हैं, कोई खासियत, कोई एडजेक्टिव वर्ड लगाते हैं, और मुरक्कबे इशारी में कोई पॉइंटिंग वर्ड लगाते हैं पहले, पॉइंटिंग वर्ड पहले लगता है, और मुरक्कबे तौसीफी में सिफत बाद में लगती है। ये दोनों में सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस हैं। इसमें एक डिफरेंस ये भी तो है कि ये मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम है। सिर्फ हम मुरक्कबे नाकिस पढ़ रहे हैं। सिस्टर अच्छा, जीनत, एक बार फिर से सवाल कीजिए, आपकी आवाज कुछ कम थी, फिर से सवाल। मैं यही सवाल कर रही थी। आपने कहा नाकिस पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं मतलब ये कह रही थी कि मुरक्कब ताम है वो, ये मुरक्कब नाकिस है, एक फर्क ये भी शायद दोनों में हो जाएगा है। बिल्कुल नहीं, ये हम मुरक्कबे नाकिस की किस्में पढ़ रहे हैं। मुरक्कबे नाकिस की 5 किस्में हैं। एक है मुरक्कबे तौसीफी, बड़ी मस्जिद, और एक है मुरक्कबे इशारी, वो मस्जिद। सिस्टर ज़ीनत, अभी हमने कंप्लीट सेंटेंस नहीं पढ़ा, याद रखिए, हमें 5 किस्में पढ़नी है, अभी हमने 2 ही पढ़ी है। सिस्टर हिना, आपका क्या सवाल है, आप भी कुछ कह रही हैं? मैम हमारा माइक तो ऑफ है। अच्छा, तो ठीक है। मैम मुरक्कबे इशारे का डेफिनेशन बोलिए एक टाइम। मुरक्कबे इशारी, मुरक्कब का मतलब एक से ज्यादा लफ्ज, इशारी जिसमें कोई ऐसे लफ्ज यूज किए गए हों जो पॉइंटिंग वर्ड्स हों, जो इशारे वाले लफ्ज हों, जैसे ये वो, अरबी में हाजा जालिका। ये सिर्फ हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, हर एक को हम तफसील से पढ़ेंगे और कुरान मजीद में इसकी मिसालें देखेंगे कहाँ कहाँ आई हैं। प्लीज आप लोग ना परेशान हो, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, और हम इसको कंक्लूड भी करेंगे, उसके बाद आपको अंदाजा होगा। तीसरी किस्म है इसकी मुरक्कबे इजाफी, पॉजेसिव फ्रेज। मुरक्कबे इजाफी, मुरक्कब का मतलब आपको पता है, जिसके अंदर एक से ज्यादा लफ्ज हो और उसके कुछ मायने भी हों। इजाफी मतलब जिसमें कोई रिश्ता, दो लफ्जों में किसी कोई एक रिश्ता हो, जोड़ हो एक, और वो जोड़ हो का के की से, रा रे री से, ये ना ने नी से। मिसाल के तौर पर हम कहें लकड़ी और मेज, लकड़ी मेज, ये 2 लफ्ज हैं। अब हम इनको, अगर हमें इनको जोड़ना हो तो हमें इनके बीच में का, की, के में से कोई लफ्ज लगाना है जो भी फिट बैठे। मेज की लकड़ी या लकड़ी की मेज, दोनों तरह बन पा रहा है। मेज की लकड़ी, लकड़ी की मेज। किसी भी 2 लफ्जों को इस तरह जोड़ें कि उनके बीच में का, की, के आए, तो फिर वो मुरक्कबे इजाफी हैं। इसमें भी 2 लफ्ज होते हैं, और इसमें एक की इजाफत दूसरे की तरफ होती है। मीन्स एक का रिश्ता हम दूसरे से जोड़ते हैं, एक की निस्बत दूसरे की तरफ करते हैं, इसको हम मुरक्कबे इजाफी कहते हैं। इजाफत माने ताल्लुक कायम करना, रिश्ता बनाना, कनेक्शन बनाना। और मुरक्कबे इजाफी में मिसाल से समझते हैं, मिसाल से आपकी समझ में आएगा। जैसे यहाँ लिखा है नसरुल्लाह,
पजेसिव फ्रेज के ताल्लुक से लिखा है, ये हम मुरक्कब इजाफी पढ़ रहे हैं, याद रखिए। यहाँ लिखा है नसरुल्लाही, नसरु माने मदद, अल्लाही माने अल्लाह, अल्लाह की मदद। समझने वाली बात यह है कि जब आप इसको अरबी में बोल रही हैं तो दो ही लफ्ज आ रहे हैं, जैसे कि मुरक्कब का रूल भी है कि दो, एक से ज्यादा लफ्ज हम देखते आ रहे हैं ऊपर से। मुरक्कब तौसीफी में भी दो ही लफ्ज थे, मुरक्कब इशारी में भी दो ही लफ्ज थे। अब हम मुरक्कब इजाफी पढ़ रहे हैं, इसमें भी दो ही लफ्ज हैं। लेकिन जब आप उर्दू ट्रांसलेशन करती हैं तो तीन लफ्ज सुनाई देते हैं आपको, अल्लाह की मदद, तो की का इजाफा सुनाई देता है। अरबी में इन सब की जरूरत नहीं है, आपको बस कैसे आपका की का तर्जुमा निकालेंगे ये अभी हम बताएंगे। नसरू, नसरू को देखिए, इससे पहले जितने भी लफ्ज हम देख रहे थे उसमें या तो शुरू में अलिफ लाम आता था या आखिर में दो जबर दो जेर दो पेश आती थी, तनवीन आती थी। यहाँ पर उनमें से ना तो शुरू में अलिफ लाम है ना नसरू के आखिर में तनवीन है। अगर आपको कोई ऐसा लफ्ज दिखे जिसके आखिर पर एक जबर एक जेर या एक पेश हो, जैसा कि नसरू में सिर्फ एक ही पेश है, और उसके बाद आने वाले लफ्ज के नीचे जेर हो, जैसे अल्लाही पर जेर है, नसरुल्लाही, याद रखिए पहले पर आपको एक जबर एक जेर एक पेश में से यानी सिंगल हरकत दिखाई दे और दूसरे लफ्ज पर जेर हो, तो वहां पर के का तर्जमा अपने आप बन जाता है, और इसी को कहते हैं मुरक्कब इजाफी या पजेसिव फ्रेज। नसरुल्लाही, अल्लाह की मदद, और ट्रांसलेशन उल्टा करते हैं, पहले अल्लाह का करेंगे फिर नसरू का, और अरबी में लिखेंगे तो पहले नसरू लिखेंगे बाद में अल्लाह। अब ये जान लेते हैं, आप में से कोई बताइए, हैंड रेज करके प्लीज आंसर दीजिएगा। नसरुल्लाही मुरक्कब इजाफी है, ये कौन से मुरक्कब की तरह इसका तर्जमा होता है? मुरक्कब इशारी की तरह या मुरक्कब तौसीफी की तरह? बताइए सिस्टर। और भी हैंड रेज चाहिए हमें। सिस्टर जीनत आप बताइए। मुरक्कब तौसीफी की तरह। क्यों मुरक्कब तौसीफी की तरह? क्योंकि मुरक्कब तौसीफी में पहले बाद वाले का ट्रांसलेशन पहले करते हैं और पहले वाले का बाद में करते हैं, तो इसी बिल्कुल तरह से ये भी करते हैं। बिल्कुल ठीक। और याद रखिएगा, जो आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पढ़ते हैं और भूल जाते हैं उसकी वजह यही है, आपको देखना है अगर ये मुरक्कब तौसीफी है, मुरक्कब तौसीफी को कैसे पहचानेंगी? पहले पर दो पेश होगा तो दूसरे पर भी दो पेश, पहले पे अलिफ लाम होगा तो दूसरे पे भी अलिफ लाम। अगर ऐसा है तो तर्जमा उल्टा करेंगी आप, कैसे? पहले बाद वाले लफ्ज का फिर शुरू वाले लफ्ज का। और अगर मुरक्कब इजाफी है जो अभी हम पढ़ रहे हैं तो भी आप उल्टा ही तर्जमा करेंगी, पहले बाद वाले का, उसके साथ काके की जोड़ेंगे और फिर शुरू वाले लफ्ज का। नसरुल्लाही, अल्लाह की मदद, अल्लाह की मदद, इसे कहते हैं मुरक्कब इजाफी या पजेसिव फ्रेज। अहलुल किताबी, आगे लिखा है अहलुल किताबी, किताब वाले। इंग्लिश में हम इसके लिए ऑफ यूज करते हैं, पीपल ऑफ द बुक, द हेल्प ऑफ अल्लाह, ये आपको पता है। काके की के लिए हम लोग ऑफ यूज करते हैं इंग्लिश में। मुरक्कब इजाफी की कुछ और मिसालें भी हैं जो बहुत कॉमनली यूज्ड हुई हैं कुरान मजीद के अंदर। पहली लिखी है यहाँ रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बी में आप देखेंगे थोड़ी मुश्किल मिसाल है, नीचे देख लेते हैं। अब यहाँ देखते हैं मालिकी, मालिकी में जेर है और एक ही जेर है। बस आपको देखना ये है कि अगर पहले लफ्ज पर कोई भी सिंगल हरकत आए, पेश भी आ सकता है, नसरुल्लाह में नसरू पे पेश आया था, मालिकी में जेर है, जेर जबर पेश कुछ भी हो लेकिन सिंगल होना चाहिए, ना तो उस पर अलिफ लाम हो और ना ही दो जबर दो जेर दो पेश हो, जो मालिकी में हो गया। और बाद वाला लफ्ज के नीचे जेर हो, बाद वाले लफ्ज के नीचे जेर होना चाहिए, चाहे वो अलिफ लाम के साथ आए कैसी आए, लेकिन पहले पर एक हरकत, पहले पर एक हरकत होनी चाहिए और दूसरे पर जेर ही होना चाहिए। मालिकी यौमी, कयामत के दिन का मालिक, दिन का मालिक, यौम माने दिन और मालिक माने मालिक।
دن کا مالک. دن کے بعد آپ کی کا کے میں سے کچھ لگائیں گی. پہلے یوم کا مطلب دن ہے, پہلے یوم کا ترجمہ کریں گی دن, پھر کا, پھر مالک. دن کا مالک, مالکی یومی, دن کا مالک. الدینی, اب یہاں پر یومی کو دیکھیے, یومی کے نیچے ایک زیر ہے, اس کا مطلب یہ مضاف ہے, اور اس کے نیچے پھر زیر ہے, تو یہ ہوگا دین کا مطلب بدلے کا, بدلے کا, دن کا مالک, یا قیامت کے دن کا مالک. تھوڑا مشکل ہے لیکن اس کو اور اچھے سے سمجھ لیں. مالکی مانے مالکی جو ہے یہ مضاف ہے. مضاف کسے کہتے ہیں؟ جو مرکب توصیفی کا, مرکب اضافی کا پہلا حصہ ہوتا ہے وہ مضاف کہلاتا ہے, دوسرا والا مضاف الیہ. مرکب اضافی میں بھی دو حصے ہوتے ہیں, پہلے کو ہم مضاف کہتے ہیں اور یہ مضاف ہے. مالکی مضاف, یومی مضاف الیہ. قیامت کے دن کا مالک, دن کا مالک. یومی من دن کے بیچ میں کا کے کی میں سے کوئی جوڑیں گے جو بھی فٹ آ رہا ہوگا ٹرانسلیشن کے حساب سے. قیامت کے دن کا مالک. اب یہ دیکھ لیتے ہیں ملک الناس. ملکی مانے بادشاہ, مالک مانے ملک الناس, لوگوں کا بادشاہ. الناس مانے لوگ, اور ہمیں معلوم ہے کہ مرکب اضافی میں ہم بعد والے کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں, تو پہلے الناس کا ترجمہ کریں گے لوگوں, پھر لگائیں گے کا, کے کی کا میں سے کوئی ایک لگا کر دیکھیے. لوگوں کا ملکی بادشاہ, لوگوں کا مالک یا لوگوں کا بادشاہ. ملک الناس. قل اعوذ برب الناس ملک الناس, کہیے کہ میں لوگوں کے رب سے پناہ چاہتا ہوں اور لوگوں کے بادشاہ سے پناہ چاہتا ہوں. ملک الناس. تو اب یہ جان لیجئے کہ ہم اس وقت مرکب اضافی پڑھ رہے ہیں. مرکب اضافی کے دو حصے ہوتے ہیں, اور پہلے حصے پر کبھی بھی ڈبل حرکت یا الف لام نہیں آتا. دو زبر, دو زیر, دو پیش نہیں دیکھیں گی آپ, نہ الف لام دیکھیں گی, بلکہ ایک زبر, ایک زیر, ایک پیش, تینوں میں سے کوئی ایک کنڈیشن ہوگی. یہاں پر زیر کی ایک کنڈیشن ہے. نصرو میں, نصر اللہ کے نصرو میں پیش تھا, کہیں زبر بھی آ سکتا ہے جو اس وقت ہمارے پاس مثال موجود نہیں ہے, تو اور دوسرے پر ہمیشہ زیر آئے گا. اس کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے قرآن کی بہت ساری مثالوں کے ساتھ. آپ پریشان نہ ہوں, آج یہ صرف انٹروڈکشن ہے, بس یہیں تک کلاس رکھتے ہیں. آپ لوگ بتائیے کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو, کوئی سوال ہو تو. سسٹر شیوا کا ہینڈ ریز ہے, آپ کا سوال ہے یا آپ کو جواب دینا ہے, بتائیں. جی آپ کی مضاف ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس سے پیش ہو, مطلب زبر بھی ہو سکتا ہے اور زیر بھی ہو سکتا ہے. مضاف ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس پر ایک حرکت ہو, صرف یہ بات یاد رکھیے. کیا کیا نہیں ہو سکتا وہ یاد مت رکھیے, صرف یہ یاد رکھیے کہ مضاف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر ایک زبر, ایک زیر, ایک پیش, تینوں میں سے کوئی ایک ہو, اور وہ خالی یہ نہیں کہ اب وہ مضاف بن گیا اور اس کے بعد والے لفظ پر زیر ہو. یہ دونوں چیزیں اگر ساتھ مل جائیں تبھی مضاف مضاف الیہ ہوگا. مضاف مضاف الیہ ہونے کے لیے یا مرکب اضافی دیکھنے کے لیے آپ کو دو چیزیں دیکھنی ہوں گی. ایک تو یہ کہ پہلے لفظ پر ایک ہی حرکت ہو, دوسرے پر زیر ہو. سسٹر شیوا ذرا دہرائیے کہ مرکب اضافی کو کیسے پہچانیں گے. پہلے والے لفظ پہ مطلب مضاف پہ زبر ہو, پیش ہو یا زیر ہو, اور مضاف الیہ پہ زیر ہو. جی جی جزاک اللہ حافظ. تو اور میم کسی کا میرے کوئی. جی جی ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے میم. جی بتائیے. جیسے مضاف کبھی بھی اسم نہیں ہوگا شاید. مضاف ہمیشہ اسم ہی ہوگا. ہی ہوگا, اور پھر بھی اس پہ تنوین بھی نہیں ہوگی اور الف لام بھی نہیں ہوگا. پھر بھی اس پر الف لام بھی نہیں ہوگا اور تنوین بھی نہیں ہوگی. مضاف ہمیشہ اسم ہی ہوگا, اچھا جزاک لیکن اللہ. وہ اسم ایسے ہوگا کہ اس کے بعد بھی ایک اسم آئے گا اور اس کے نیچے زیر ہوگا. ٹھیک ہے, اور کوئی سوال ہے. میم اہل الکتاب کا میننگ کیا ہوگا میم؟ کتاب والے, اہل الکتابی, کتاب والے. اب والے کوئی کام تو ہے نہیں, ٹھیک ہے. نام کی بھی قسمیں ہوتی ہیں, کوئی بہت کلیئر نام ہوتا ہے, کوئی بہت اچھا سننے میں لفظ ہوتا ہے. کسی کو جیسے مند ہے, ایک لفظ ہے مند, صحت مند, تو مند جو ہے وہ کوئی کام تو ہے نہیں, یہ لفظوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تو اہل الکتابی کتاب والے,
جیسے یہ آسمانی کتاب والوں کو کہا گیا ہے، جن کو قرآن کی جن کو آسمانی کتابیں ملی. اہلو بھی ایک اسم ہی ہے. باجی المسجد کبیر کا معنی کیا بولے آپ نے؟ المسجد کبیر. المسجد کبیر. کبیرن. آپ غلط بول رہی ہیں اصل میں، یا پھر ہمیں غلط سنائی دے رہا ہے. صاف بولیے، کیونکہ زیر زبر پیش کے فرق سے معنی بدل جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ابھی ہم لوگوں نے کلاس میں اوپر پڑھا کہ اگر ایک زبر الف لام بدل جائے تو معنی بدل جاتے ہیں. اس لیے بہت صاف بولیے، تبھی ہم جواب دے پائیں گے. المسجد کبیرن اگر آپ بول رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے مسجد بڑی ہے. اور اگر آپ بول رہی ہیں المسجد الکبیر تو ہوگا بڑی مسجد. اور اگر آپ بول رہی ہیں کہ مسجد کبیر تو ہوگا بڑی کوئی یا ایک بڑی مسجد. کوئی بڑی مسجد یا ایک بڑی مسجد. اور کوئی کسی کا سوال ہے؟ کلاس پوری ہو گئی ہے ہماری. اچھا، کل کا ہوم ورک آپ جان لیں کہ آپ کو ہوم ورک میں کیا بھیجنا ہے. ہوم ورک میں ایک تو آپ کو اس سوال کا جواب لکھ کر بھیجنا ہے کہ یا ہم ایک سوال دے دیں گے گروپ پر کہ جملے کتنے طرح کے ہوتے ہیں عربی میں. صرف نمبر میں جواب دینا ہے کتنے طرح کے ہوتے ہیں، اور مرکب ناقص کی کتنی قسمیں ہیں. صرف نمبر میں جواب دینا ہے آپ کو. 2 4 6 لوگ بھی اگر دے دیں گے تو اور لوگ کی یاد دہانی ہو جائے گی. لیکن کچھ لوگ بہت ذمہ دار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اچھی صفات کے ساتھ بھیجا ہوتا ہے. تو اگر آپ بھیجیں گی، جی ہاں اس سے مراد آپ ہی ہیں، آپ اپنے آپ کو لے سکتے ہیں سب ایک ہر کوئی. تو آپ میم بھیجیں. جملے میں سینٹینس. جملوں کی کتنی قسمیں ہیں اور مرکب ناقص کتنے طرح کا ہوتا ہے. نمبر میں جواب دینا ہے آپ کو. پورا لکھیے گا اور نمبر میں جواب لکھ کر بھیجنا ہے آپ کو. آپ چاہیں تو اپنی کاپی پر قلم پر سے لکھ کر بھی بھیج سکتے ہیں، چاہیں تو ٹائپ کر کے بھی بھیج سکتے ہیں. اور جتنے زیادہ لوگ بھیجیں گے جواب اتنا اچھا ہے، کیونکہ آپ اپنے حصے کی ذمہ داری ادا کیجیے. اور ایک بات اور یہ عرض کرنی ہے، جب بھی آپ کلاس کا لنک دیکھیں تو پلیز آج آپ کی کلاس میں موجودگی ہوگی، کیونکہ ہم بھی کلاس کے سے 1 2 4 گھنٹے پہلے ہم لنک بھیجتے ہیں. جو ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس لنک کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ یا جی اوکے کچھ نہ کچھ ایک اپنا فیڈ بیک ضرور، اس میں ایک رسپانس ضرور شو کریں. جو لوگ ذمہ دار لوگ ہیں پلیز، اس سے تھوڑا سا لوگوں کی نا وہ بڑھ جاتی ہے، اور لوگ بھی سنسیئر ہو جاتے ہیں کہ کلاس اچھی ہونے والی ہے. اور اگر آپ ذریعہ بن رہے ہیں کلاس کو اچھا ہونے کے لیے تو ظاہر ہے آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا بدل ملے گا، کیونکہ یہ دین کی کلاسز ہیں، عام کلاس تو ہے نہیں. جو جتنا حصہ لے گا اس کو اتنا ہی زیادہ اجر ملے گا، اور اس کا اجر پہلے دنیا میں آپ کو انشاءاللہ ملے گا. میم جملہ سینٹینس ہوتا ہے نا، کوشچن ایک بار سینٹینس. اور دہرا دیجیے پلیز. جملے کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ جملے کتنے طرح کے ہوتے ہیں اور مرکب ناقص سوری جملے کتنے قسم کے ہوتے ہیں اور مرکب ناقص کی کتنی قسمیں ہیں. جی اور کوئی سسٹر کا کوئی سوال ہے؟ اور کسی سسٹر کا؟ میم جملوں سے کیا ٹھیک سے سوال کیا کیجیے آپ لوگ کا. آپ آدھا سوال کرنے کے بعد مائک آف کر دیتے. جملوں سے کیا مراد ہے میم؟ اس کا مطلب آپ کلاس میں نہیں تھی. جملے سے مراد یہ ہے کہ اچھا جملہ ہم لوگوں نے نہیں پڑھا ہے، ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ مرکب کی کتنی قسمیں ہیں. جملے نہیں، مرکب کی کتنی قسمیں ہیں، اور مرکب تام اور مرکب ناقص. پھر ناقص کتنے قسم کا ہوتا ہے، مرکب کی کتنی قسمیں. سوال ٹھیک کر لیجئے، مرکب کی کتنی قسمیں ہیں. بہت صحیح اسٹیشنس نے یاد دہانی کرائی. مرکب کی کتنی قسمیں ہیں اور مرکب ناقص کتنے طرح کا ہوتا ہے، یہ ہے سوال. ٹھیک ہے، دعا پڑھ لیتے ہیں اختتام کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم